हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डाटा एजुकेशन। हम पिछले लेक्चर में हम लोग इनफ्लोरेसेंस का फर्स्ट टाइप रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड रेसिमोज पढ़े थे। सिंपल का पार्ट्स था रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैंटकिन, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिचुलम, etc। आज हम लोग देखेंगे second part, second types of inflorescence, that is cymoge inflorescence. In cymoge inflorescence, main axis or peduncle terminates in a flower, and due to formation of flower at tip of apex of the main axis, the length of growth of main axis or peduncle is definite. So cymoge inflorescence is also called definite inflorescence. Okay. In case of cymoge, flowers are arranged in basipetal manner or centrifugal manner. Suppose that this is axis. First flower develops at terminal part of the axis. तो एक फ्लावर पहले डेवलप हुआ, इसके बाद ब्रांच निकला, फिर ब्रांच पर फ्लावर डेवलप होगा, फिर ब्रांच निकलेगा, फिर फ्लावर डेवलप होगा। इट मीन्स पहले ये फ्लावर आया, उसके बाद ये फ्लावर आया, है ना। पहले सेंट्रल पार्ट का फ्लावर आया, मीन्स ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट एंड यंग फ्लावर इन पेरिफेरल पार्ट, जो कि रेसिमोज का जस्ट अपोजिट है। रेसिमोज में पहले नीचे फ्लावर डेवलप हुआ था, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, सबसे ऊपर तो होता ही नहीं। ओके, सो फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। ओके, cymoge inflorescence is two types or three types: monochasial, bichasial, multichasial. Monochasial, also called uniparous. Dichasial, biparous, multichasial, पॉलीपेरस या मल्टीपेरस। पेरस और चेसियल मीन्स ब्रांच। यहां जो चेसियल टर्म यूज किए हैं किसके सेंस में, तो ब्रांच के सेंस में। जैसे अगर यह मेन एक पेडंकल है और इस पेडंकल से दो लैटरल ब्रांच निकलता है एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, दिस टाइप ऑफ cymoge inflorescence is dichasial, bichasial, biparous. Okay, and if only one branch emerge at a time, only one branch emerge at a time and branch terminates into flower, एक ब्रांच निकला, फिर से दूसरा ब्रांच निकला, फिर यह टर्मिनेट कर गया, फिर ब्रांच निकला, फिर फ्लावर स्वेटर। इट मीन्स एवरी टाइम ओनली वन ब्रांच डेवलप्स, दैट टाइप ऑफ cymoge is called monochasial or uniparous inflorescence. Okay. Uniparous, first type is uniparous. Peduncle terminates in a flower, only one lateral branch develops at a time and also terminates in a flower. Suppose that this is main axis or peduncle terminates into flower, only one lateral branch develops at a time. अब देखिए आप दो पोजीशन है, एक ब्रांच निकला, टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, नेक्स्ट सिंगल ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, ओनली वन ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। दिस इज वन केस। अदर केस इज पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, वन ब्रांच एट ए टाइम टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, अगेन सिंगल ब्रांच। In these conditions, only one lateral branch develops at a time,
but arrangement of lateral branch in these two cases are different. इसमें क्या है, all lateral branches develops in a same side, single side, और वहां दोनों में क्या है, अलग अलग साइड है. This is called helicoid. This type of called helicoid. Okay. So monochasial uniparous is of two types. One is helicoid, other is called ascorpioid. Other is called ascorpioid. Okay. So it is of two types. Monochasial uniparous is of two types. All lateral branches develops in same side. हमेशा एक ही साइड में, राइट साइड में डेवलप्स हो रहा है. दैट इज कॉल्ड हेलिक्वाइड. ओके. एंड इफ lateral branches develops on one side and other opposite side, when lateral branch develops in both side in alternative form, means one branch in one side and other in opposite side. This type of cymose is called ascorpioid and this is called helicoid. Okay. Example, Drosera. Drosera is example of helicoid. And next example, Heliotropium. Okay, Heliotropium and Drosera are the example of helicoid, while Begonia is the example of ascorpioid. ओके. ये हमने देखा यूनिपेरस, सिंगल ब्रांच निकला. अब अगर इसी ब्रांच को हम डबल कर दे, जब भी निकले तो दो ब्रांच, दिस लाइक यहां से दो निकला, ये टर्मिनेट किया, फिर दो ब्रांच, फिर टर्मिनेट किया, फिर दो ब्रांच. दैट इज कॉल्ड बाइचेसियल बाइपेरस. सेकेंड टाइप इज बाइपेरस और डाइचेसियल. पेडंकल टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर. Two lateral branches develops from basal part of the peduncle. Suppose that this is peduncle, terminates into flower. Basal part यहाँ से leaf भी arise कर सकता है, and two branch this like. Lateral branch terminates into flower also. Again develops two branch, also terminates in a flower. This type. ये प्रोसेस चलते रहेगा. दिस इज कॉल्ड बाइपेरस. ओके. एग्जाम्पल, बोगनवेलिया, जास्मिन, डायंथस, ऑल्सो कॉल्ड पिंक फ्लावर. नेक्स्ट, मल्टीपेरस. यूनिपेरस में सिंगल ब्रांच, बाइपेरस में दो ब्रांच, मल्टीपेरस में बहुत सारा ब्रांच एक ही समय. अगर यह पेडंकल है, पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. सपोज दिस इज नोड. यहां अगर नोड है तो यहां से बहुत सारा ब्रांच निकला, फिर इससे ब्रांच निकलेगा बहुत सारा, टर्मिनेट्स, सब ब्रांच पहले टर्मिनेट्स कर जाएगा और तब निकलेगा लेटरल ब्रांच. ठीक है ना. एग्जाम्पल दिखाऊं, पेडंकल टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर. मेनी लेटरल ब्रांचेस डेवलप्स फ्रॉम बेस ऑफ पेडंकल दैट आल्सो टर्मिनेट्स इन फ्लावर. एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस, एसेल्पियास, हेमेलिया. कैलोट्रोपिस आप लोग जानते होंगे इन हिंदी, मदार और अकमन. मदार और अकमन कैलोट्रोपिस. यहाँ काफी ग्रुप में, गुच्छे में फूल मिलता है.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लेटरल ब्रांचेस. ओके, नेक्स्ट third type of inflorescence. First type racemose, second type cymose, and third type of racemose is a special type of racemose. There are three a special type of inflorescence: hypanthodium, cythium and verticillaster. वह जो है इन दोनों से अलग है और कुछ का कॉमन भी कर सकते हैं, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है. सो स्पेशल टाइप इज ऑफ थ्री टाइप्स: Hypanthodium, Cythium and verticillaster. A special types of inflorescence. यह जो inflorescence है अजीब inflorescence है. It means देखने में तो यह एक फ्लावर के जैसा लग रहा है. Appears like a single flower, but it is not a single flower. It is a group of flower. Okay, it is a group of flower. रहता है एक से अधिक फ्लावर, लेकिन वह अपीयर होता है एक सिंगल फ्लावर की तरह. यही है अ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस. अ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ थ्री टाइप्स: साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेंथोडियम. ओके, सो फर्स्ट इज साइथियम. साइथियम, हाइपेंथोडियम एंड वर्टिसिलास्टर. फर्स्ट टाइप इज साइथियम. ब्रैक्ट्स आर फ्यूज टुगेदर. ब्रैक्ट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल पार्ट ऑफ द पेडंकल. ओके, तो वह क्या हो गया? फ्यूज कर गया. ब्रैक्ट्स आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स कप शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस लाइक कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द मार्जिन ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर बियर्स सिक्रीटरी ग्लैंड्स. मार्जिन ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर बियर्स सिक्रीटरी ग्लैंड्स. ओके, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, इट मीन्स दीज आर सिक्रीटरी ग्लैंड्स. secretes some material, secretory glands. Okay, and central part of cup shaped structure bears female flower. This is female flower and these are male flowers. This is female flower and these are male flowers. Central part of cup shaped structure bears female flower. Around the female flower male flowers are arranged. Okay, लेकिन है ये फीमेल फ्लावर, लेकिन ये अपीयर्स होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के जैसा, और मेल फ्लावर्स अपीयर्स लाइक स्टामेन. फ्लावर्स आर क्लेमाइडियस, मीन्स नॉट कंप्लीट, ओनली essential part is present. In male a stamen is present and in female pistil is present. Okay, single essential organ present in male a stamen, in female pistil, and female flowers has tricarpellary pistil, means consist by combination of 3 carpels, and this is a stigma. Generally you know gynoecium is the female part. Unit of gynoecium is called pistil, or carpel consists of 3 parts: ovary, a style and a stigma, uppermost part of a stigma. So this is a stigma, and a stigma is tricarpellary with 3 lobe. ठीक है ना. अब अगर इस फिगर को हम देखें ओपन करके, ये तो क्लोज टाइप में है, हम देख लें कप शेप्ड स्ट्रक्चर, this like cup shaped structure. At the end of margin of involucre glands are present. Okay, these are glands, and from the central part of cup shaped structure, this like, and this is 3 lobed. तीन लोब में बटा होगा ये स्टिग्मा विथ 3 लोब. ओके, एंड अराउंड द फीमेल फ्लावर, मीन्स इसके चारों तरफ बहुत सारे मेल फ्लावर होंगे. अब फीमेल फ्लावर सेंट्रल पार्ट में है, यह सबसे पहले मैच्योर होता है. फीमेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर. आफ्टर दैट मेल फ्लावर प्रेजेंट अराउंड द फीमेल फ्लावर मैच्योर. पहले सबसे सेंटर वाला मैच्योर होगा, यह बाहर आ जाता है, इसके फिर चारों तरफ वाला मैच्योर होता है,
और धीरे धीरे फ्लावर मैच्योर करता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम, एग्जाम्पल यूफोर्बिया, पॉइंसेटिया। ओके, सेकेंड टाइप इज हाइपेंथोडियम। सेकेंड इज हाइपेंथोडियम। Second type of a special inflorescence is hypanthodium. In this type of inflorescence, the upper part of peduncle forms cup-shaped structure. Upper part of peduncle, this like. Okay. Upper part of peduncle forms cup-shaped structure as like Cythium. But in case of Cythium, cup-shaped structure is formed by fusion of bracts or involucre. But in Hypanthodium, it is formed by upper part of peduncle. Okay. And in cavity of cup-shaped structure, flowers are present. Generally, unisexual flowers are present, but flowers may be unisexual, bisexual, or sterile flower. This like in cavity, flowers are arranged. Near the aperture, this cap-shaped structure opens through aperture, that is called ostiole. Aperture is called ostiole. And near the aperture, generally male flowers are present, and in central part at base, female flowers are present. Okay, first of all, some pollinators such as insect, ant enters in cavity through ostiole, comes in contact of male flower, and when ant comes in contact of male flower, pollen grains sticks with ant or pollinator. When धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचता है, फीमेल फ्लावर के पास, तो मेल से फीमेल के पास pollen grains का ट्रांसफर हो जाता है और pollination हो जाता है. ओके, so in cavity of cup-shaped structure, flowers are arranged. Flower may be male flower, female flower, or sterile flower. Example: fig, banyan, पीपल, गूलर, अंजीर, बनियान, पीपल इसका एग्जाम्पल है. जनरली जो हम कहते हैं दिस इज गूलर इज ए फ्रूट, लेकिन ये फ्रूट नहीं है. इट इज नॉट ए फ्रूट, इट इज ए ग्रुप ऑफ फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस. जनरल लोग इसे फ्रूट मानते हैं और कहा जाता है गूलर का फूल नहीं होता है. फिग मीन्स वही गूलर और अंजीर होती है. तो फिग मीन्स दिस इज नॉट ए फ्रूट, दिस इज group of flowers or inflorescence, and type of inflorescence is hypanthodium. Okay, and next last is verticillaster. Now see last type of a special inflorescence or types of inflorescence, that is verticillaster. Verticillaster means false whorl. False whorl, whorl means चक्र. इसको कहा जाता है false चक्र. Like appears a whorl, flowers are arranged around the axis, but that is not true. Okay, so it is called false whorl. In this type of inflorescence, flower develops from axil of leaf. Suppose that this is main a stem. Okay, this is a stem, nodes, leaf, and the angle between leaf and a stem, leaf axis और stem के बीच का जो एंगल होता है कॉल्ड एक्साइल. उसी का नाम क्या देते हैं, एक्साइल. अब देखिए यहां से ब्रांच निकला, फ्लावर्स ग्रो किया. मैं लिखा हूं आगे, फर्स्ट डाइचेसियल इन्फ्लोरेसेंस, देन मोनोचेसियल फ्लावर डेवलप्स. अब डाइचेसियल मीन्स टू ब्रांचेस डेवलप्स, ईच terminates with a flower,
ओके। एंड देन मोनोचेसियल मीन्स सिंगल ब्रांच डेवलप्स इनटू फ्लावर, देन सिंगल ब्रांच अगेन डेवलप्स इनटू फ्लावर, सिंगल ब्रांच डेवलप्स इनटू फ्लावर, दिस साइड आल्सो सिंगल ब्रांच डेवलप्स इनटू फ्लावर, सिंगल ब्रांच डेवलप्स इनटू फ्लावर, सिंगल ब्रांच डेवलप्स इनटू फ्लावर। इस तरह से सभी एक दूसरे को कवर कर लेता है। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 2 clusters, one cluster and this one cluster. Each cluster possesses 3 to 9 flowers formed of a bipairous with unipairous. And unipairous में कौन सा स्कर्पॉइड? It means one right side, then left side, right side. अल्टरनेटिव फॉर्म में इस तरह से फ्लावर डेवलप होगा और वह फ्लावर स्टेम के चारों तरफ से कवर कर लेता है। चारों तरफ है होता है। एक्चुअली में ओरिजिन चारों तरफ है नहीं, ओरिजिन 2 ही पॉइंट पर है, लेकिन ड्यू टू यूनिपेरस सिंगल ब्रांचिंग के कारण पहले 2 ब्रांच निकला दोनों तरफ से, एक इधर 2 ब्रांच निकला इस तरह से बाईपेरस के कंडीशन में, और फिर सिंगल ब्रांच राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और इधर से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। देखिए तो क्या किया, इस एक्सिस को चारों तरफ से कवर कर लिया, लेकिन ओरिजिन 2 ही पॉइंट पर है। पोजीशन अरेंजमेंट ऐसा रहा कि चारों तरफ कवर किए हुए है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड वर्टिसिलास्टर। एग्जाम्पल ऑसिमम और तुलसी और साल्विया। तुलसी के एक एपिकल पार्ट पर होता है, उस फ्लावर की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके जो एक्साइल पार्ट में फ्लावर देखेंगे ऑसिमम में तो वह वर्टिसिलास्टर टाइप्स का होगा। ओके, तो हम लोग आज पढ़े इन्फ्लोरेसेंस समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में